some of you might be aware of Sir. I'll just speak a few words about it. It is an honor for us to introduce Mr. Abhijit Samant, who is known for his excellence in the fields of science, sports, and spirituality. As a Meridian scientist and physiotherapist, Mr. Samant has over 25 years of experience and was awarded the prestigious University Gold Medal. His research on the brain's frontal lumen has greatly advanced our understanding of human psychology. His expertise has benefited a wide range of clients, from athletes to business leaders. Mr. Samant is also a former Ranji cricketer, having played for top clubs, and continues to mentor renowned cricketers, passing on his vast knowledge and experience. Beyond all this materialistic achievement, he has very firm spiritual base, which is what truly sets Mr. Samant apart, his profound spiritual grounding. Known as Himalayan Kriya Yogi, he follows the teachings of Mahavatar Babaji and his guru Yogiraj Amarjyoti Babaji, through whom he has initiated many into the path of Kriya Yogi via Shaktipat. He embraces Kriya Yogi, a holistic philosophy that integrates the paths of Bhakti, which is also known as devotion, Karma, that is action, and Jnana, which is knowledge. This spiritual foundation enables him to approach life with a unique perspective, guided by compassion, wisdom, and inner peace. Mr. Samant's journey is a powerful example of how one can bridge the worlds of science, sports, and spirituality, embodying the transformative potential of human possibility. We are deeply honored to have him with us today and look forward to inspiring presence and the insights he will share with us. Please join me in welcoming Mr. Abhijit. I would like to call forward Dr. Deepak Walekar to felicitate Mr. Abhijit Samant. A round of applause for this guy. Just would like to add a few words what actually Priyanka said. The way actually Abhijit has synergized these 3 years of the critical 3 years of the life, science, spirituality and the sports. Really hats up to you, sir. And the 4 A's is he himself is a Samant. So 4 A's really is synergy as well. And those all 4 A's are very critical for us, not only for the health of physical health, but as a human being, the mental health and the physical health, that all has to synergize. And Samant sir is really working hard to bring upcoming our well-being of the human being without having any kind of those monetary gains. He has already achieved a lot. He is only actually trying to give all those learnings to society and bring them to the quality life. So that's what actually Abhijit sir has done. So real sir, congratulations to you. We all know 5 बज जाते 3 बज जाते धूप आती है सबके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं. Before we even get there, I want everyone to just do 3 cheers for the Vimal Group, because this is where all our companies, many people from different parts of Bombay are coming together. Okay, so 3 cheers for Vimal Group. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! All again, so energy on today. And a small announcement. नाम अमित है. अभिजीत सर के बिहाफ में हमारा एक ग्रुप है, मावतर जी
क्रियायोग परिवार और अभिजीत सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, हिमालयन क्रियायोगी अभिजीत। तो इस ग्रुप के अंडर जो हमारा मेडिटेशन ग्रुप है, इस ग्रुप के अंडर हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो अभी ये स्पोर्ट्स डे क्या है, एक साल आज किया, अगले साल फिर किया, तो ये स्पोर्ट्स डे ये लाइफस्टाइल में आना चाहिए। तो ये आप सबके लिए और हम सभी के लिए ये एक टेस्ट है, ये आई ओपनर है कि हम 10-15 साल पहले क्या थे और हम अभी क्या है। तो ये आई ओपनर है, इसको पार्टिसिपेशन के कंपटीशन के तरफ से न देखते हुए पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखिए कि हम लोग को पार्टिसिपेट करना है और देखना है हम लोग 15 साल पहले जो थे अभी है क्या, अभी हम लोग नहीं है वो। तो ये आई ओपनर हम सभी के लिए रहेगा कि आज से हम लोग को मोटिवेट होके हम लोग को फिटनेस के तरफ एक कदम बढ़ाने। तो आज हम शुरुआत में 4 हमारे राउंड हो गए। यहाँ पे 2 टाइप आसन है, वीरभद्रासन और मलासन। उसके बाद 2 प्लैंक होगा और एक अपना पुशअप होगा। तो प्लैंक में लॉन्गर ड्यूरेशन, पुशअप में काउंट नंबर ऑफ काउंट्स, और वीरभद्रासन और मलासन में भी लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से हम लोग कंपटीशन और परफेक्ट आसन जिसका होगा उस हिसाब से हम लोग रनर अप और विनर और रनर अप डिक्लेयर करेंगे। मेल अलग, फीमेल अलग, मतलब मेल में एक विनर एक रनर अप, फीमेल में एक विनर एक रनर अप। इस हिसाब से हर कंपटीशन में 4 ट्रॉफीज रहेगी, 4 राउंड मिला के 16 ट्रॉफीज हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, ये सब होने वाला है, ये आप मैं फिर से यही कह रहा हूँ आपको कि ये आप मोटिवेट होके पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जो करेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा और नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ मतलब ट्रॉफी नहीं, बट ऑब्वियस ट्रॉफी नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब जो एक मोमेंट भी आपने कुछ अपने लिए ले लिया ना उसमें से, तो आपको लाइफ लॉन्ग उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा और आपको वो मिलेगा, वो बेनिफिट आपको होगा। तो शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज के जो ये यहाँ पर जो हम कंपटीशन के लिए जो प्रोसेस रखी है, उस प्रोसेस में हम ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन के लिए ज्यादा भर देने वाले हैं। आप ऑफिस के लिए ट्रैवल करते हो, ऑफिस में भी काम करना पड़ता है, घर में भी काम करना पड़ता है। तो फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तो 4 टेस्ट खाली इसके लिए है कि आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। जब तक हम अंदर से मोटिवेट नहीं होते तब तक हम आगे कुछ नहीं करते। यहाँ पर जितने भी उपस्थित है वो सारे के सारे विनर ही हैं, कोई यहाँ पर विनर और रनर नहीं है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में जुड़ना भी बहुत बड़ा एक संकल्प ही है। तो पहले हम ये जो 4 प्रोसेस है वो करेंगे। स्टार्ट हम वीरभद्रासन से करते हैं। तो वीरभद्रासन जो आसन है वो आपका जो ब्रेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड का जो काम है ना, वो इंप्रूव करता है। आप देख सकते हो, हमको एक ग्रुप करेंगे, वो ग्रुप के हिसाब से आपको करना है। वीरभद्रासन चलेगा ऐसे। ये देखिए, आपको बैलेंस करना है। आपका ये जो नीज है, तो नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए, ये पूरा फ्लैट होना चाहिए और हाथ सीधा। तो ये पोजीशन में आपको हल्का हल्का कपालभाति करना है। कपालभाति मतलब सांस को छोड़ते रहना। हर एक का राइट या लेफ्ट, कोई तो पाव स्ट्रांग रहता है, जो आपका पाव स्ट्रांग है उस पाव से आपको करना है। लेकिन घर में जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑल्टरनेट दोनों पाव से कीजिए। तो डे टू डे लाइफ में ये आसन बहुत काम करता है आपका ब्रेन और मसल को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये देखिए, हल्का हल्का कंसंट्रेट पॉइंट पे ऊपर त्राटक करना है आपको, ये भी सामने देखिए, और ज्यादा से ज्यादा रुकने की कोशिश करनी है। ध्यान देना है कि आपका जो नी है टो के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर नी टो के बाहर जाता है तो आपका कार्टिलेज जो है, तो नी जॉइंट को सपोर्ट करता है, वो डैमेज होता है। तो वो आपको ख्याल रखना है खाली। और इसमें जो ज्यादा रुकेगा वो विनर, और उसके नीचे जो रहेगा वो रनर, उसके हिसाब से करेंगे।
उसके बाद सेकंड जो टेस्ट है वो पुशअप का है। पुशअप दिखाइए, आइए आप भी आइए, आप भी आइए। इसमें करते समय ध्यान रखना है आपका हिप ऊपर होना चाहिए, खाली ट्राइसेप का मूवमेंट करना है। नीचे जाना है, ऊपर आना है। नीचे जाते समय आपको सांस को लेना है, ऊपर आते समय सांस को छोड़ना है। तो ब्रीदिंग के साथ करना है। हिप स्पेसेस में भी आपको जो ज्यादा करेगा विनर, उसके जो सेकंड में रहेगा वो रनर घोषित किया जाएगा। उसके बाद है फ्लाइंग। फ्लाइंग दिखाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइंग आपके कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। फ्लाइंग में भी आपको ये जो बैक है आपका सीधा होना चाहिए, स्टमक टाइट होना चाहिए। तो जितने भी कंपल्सरी नहीं, लेकिन ये जो फ्लाइंग जो एक्सरसाइज है इससे आपके कोर मसल की ताकत बढ़ती है। ये अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको लो बैक का इशू कभी नहीं होगा। तो ये एक केस है। तो 4 नंबर जो है वो है मलासन। मलासन में आपके जो एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उनका मोबिलिटी इंप्रूव होता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। उसके साथ आपके जो ब्रेन के जो फंक्शन है वो उसको भी एक्टिव करते हैं। इसलिए जितना आप नीचे जा सकते हैं जाना है तो आप करना है और आपको होल्ड करना है। एक सिंपल एक्सरसाइज है, कोई कठिन नहीं है आपके हिसाब से जो, लेकिन अभी आपको ये करना है हर एक को। घर जाने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद इसका जो समय है वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये 4 एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज में एक तो आपका ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से जो बुढ़ापे में जो अल्जाइमर जैसे विकार होते हैं तो आपको लाइफ में कभी नहीं होंगे। डिसीजन पावर जो है, मतलब कभी कभी क्या होता है, आप सब जॉब कर रहे हो तो कोई कोई फटाफट डिसीजन लेने का रहता है, तो वो इंप्रूवमेंट आ जाती है। अवेयरनेस बढ़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस बहुत बढ़ेगा ये एक्सरसाइज में। दूसरा, कोर स्ट्रेंथ जब भी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपको जो लोअर बैक के जो मसल है, मतलब लंबर को सपोर्टिंग मसल है, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। फ्लाइंग में आपके हार्ट लंग्स भी की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। शरीर में पूरी सर्कुलेशन बढ़ता है। आपका जो पाचन क्रिया है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो स्ट्रांग बनती है, जिसके कारण आपका रस धातु अच्छा होता है। आयुर्वेद में 7 धातु बोले गए हैं। अगर रस धातु आपका खराब होता है तो शरीर के आगे के सारे धातु वीक हो जाते हैं। तो ये इसमें कितना समय लगता है? 5 से 10 मिनट का। आप घर में जब भी आप सुबह सुबह निकलते हो, ब्रेकफास्ट के पहले आपको ये करना है बस, तो निकल जाइए। या रात को जब भी डिनर लेंगे उसके पहले भी ये कर सकते हैं। पहले हम ये प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। तो ग्रुप तैयार कीजिए। 1 2 3 बोलूंगा, 3 बोलने के बाद आपको स्टार्ट करना है। 3 गेट स्टार्ट। जिनका टूट जाता है उनको नीचे बैठ जाना है। अपने ब्रीदिंग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पेट को टाइट रखिए और सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए जितना चाहे एक सामने पॉइंट को देखते रहिए। जिनको छूट जाता है उनको बैठना है। पूरा 100% देना है, छोड़ना नहीं है। अपने आप को चेक करो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कैपेसिटी को चेक करो, अपने पेशेंस को देखो। वेरी गुड। अपने पेशेंस को चेक करो, हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे पेशेंस के साथ पीछे का पाँव जितना पीछे का पाँव जितना पीछे जा सकते हैं लेकर जाइए। अपने आप को मोटिवेट करते रहो। वेरी गुड, बहुत खूब। देखो अपने आप को
आपका जो ब्रेन और मसल का जो कोऑर्डिनेशन है वो चेक करो। वेरी गुड। ब्रीथिंग को चेक करो थोड़ा, पीछे का पाँव थोड़ा पीछे। वेरी गुड। सुनना नहीं है। और कुछ सेकंड बाकी है खाली, अपने आप को ब्रीदिंग को जो ब्रीदिंग करते रहो, जितना ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा समय आप देख पाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सब तालियां बजाओ। बहुत खूब। बहुत खूब। अपने आप में अपने सबके लिए तालियां बजाइए। सभी लोग हैं, लेकिन अभी आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चला रहेगा कि आपको अपने शरीर के ऊपर और कितना मेहनत करना है, क्योंकि ये ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। जब भी आपका वीरभद्रासन आप ज्यादा समय तक रुक पाओगे तो समझ लेना आपके जीवन में कभी भी एंजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर प्रवेश नहीं करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि पेशेंस लेवल बहुत कम हुआ है। उसका रीजन है कि ब्रेन के जो सिग्नल है वो सिग्नल शरीर रिसीव नहीं कर पा रहा। तो ये टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी है हर रोज। नेक्स्ट ईयर जब भी आएंगे तो सारे के सारे विनर होने जरूरी है। सबके लिए वापस एक बार तालियां बजाइए। ये जो वीरभद्रासन है इसका एक्चुअली जो फॉर्म है वापस एक बार मैं दिखाता हूँ। तो आपको जब भी घर में जब भी जाएंगे तो आपको ये करते समय एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को भी आपको यूज करना है। आपको सपोर्ट लेना है ऐसे स्टार्ट करने के लिए। आपके स्क्वाड्रिसेप मसल की ताकत बढ़ेगी, आपके कोर मसल की ताकत बढ़ेगी, प्लस आपका ब्रेन और जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वो भी इंप्रूव होगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर ये आप अगर रोज 2 से 5 मिनट करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेटाबॉलिक भी इसमें बहुत एक्टिव हो जाता है। क्योंकि बीफ मसल काम कर रहे हैं एक्सरसाइज में। जब भी बीफ मसल काम करते हैं तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है सर्कुलेशन के लिए, ब्लड को प्योर करने के लिए भी काम करना पड़ता है। तो हार्ट की भी ताकत बढ़ेगी, स्टैमिना भी इंक्रीज होगा। तो अभी दूसरा जो है वो मलासन करते हैं। ये भी ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन का ही है। दिखाओ, पैर में डिस्टेंस लेना है शोल्डर से ज्यादा। उसके बाद आप जितना नीचे जा सकते हैं जाइए और हील को लिफ्ट करके हाथ को सामने रखिए। ये देखिए, इसमें भी आपको फोकस करना है एक पॉइंट के ऊपर। अब डीप ब्रीथिंग करते रहिए। करेंगे स्टार्ट। See, understand the intention of this activity is to get the form right. घर पे जाके if you're doing the wrong thing, it might lead to trouble than the benefit. तो adverse effect नहीं है. Ensure you're trying to do the right form. अगर लग रहा है wrong है, वो effect नहीं आ रहा है जो इन्होंने बताया, call them. They will ask you. They'll help you. They'll assist you. ठीक है? The winners and runners-ups will be the ones with the right form for the longest time, not the one who is just staying for the longest time. राइट फॉर्म जरूरी है। जो अभी दिखाया है ध्यान में देखिए, आपका नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए, बैक सीधा होना चाहिए, हील लिफ्ट होना चाहिए, हाथ को आगे स्ट्रेच करना चाहिए और होल्ड करना है। कोर को स्ट्रेच पूरा
होल्ड कीजिए, स्टार्ट। 1 मिनट, 1 2 3 बोलूंगा, 3 के बाद आपको स्टार्ट करना है। तब तक थोड़ा आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, पूरा सांस दीजिए, छोड़िए, मेडिटेट कीजिए अपने ब्रीदिंग के ऊपर। जैसे आपका ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा। जैसे ही मन स्थिर होगा, आपकी ये जो इवेंट है, ये जो प्रोसेस है, वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ब्रीदिंग स्लो होना जरूरी है। इसके लिए ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ब्रीदिंग स्लो होगा, आपका देखिए मन का जो विचार है वो भी ऐसा ऐसा स्लो हो जाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। नीचे जाना है, जितना जा सकते हो उतना हिल को लिफ्ट कीजिए। आपको पाव फोल्ड करना है, नी को फोल्ड करना है, बैक सीधा रखना है। फॉर्म देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बहुत जरूरी है। थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देते हुए अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। आपको पाव का जो स्ट्रेंथ है आपको पता चलेगी। हम सोचते हैं कि नी पेन क्यों हो रहा है, हिप पेन क्यों हो रहा है, साइटिका का पेन क्यों हो रहा है। उसका रीजन है कि मसल की स्ट्रेंथ नहीं है। अभी आप एवरेज आपका जो उम्र है 26-27 रहेगा, ये इसमें अगर ये हालत होगी तो सोचो 50 के बाद क्या होगा। तो अपने आप के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। शरीर नहीं तो कुछ नहीं। जिनका बैलेंस जाता है उनको नीचे बैठना है। बाकी जितना आप रुक सकते हैं मैक्सिमम रुकने की कोशिश कीजिए। 100% दीजिए, पहले बीच में छोड़ना नहीं। बैक सीधा, बैक को सीधा, झुकना नहीं है। आगे जो थक जाएंगे उनको बैठना है। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी आपको। बहुत जरूरी है, ध्यान में रखो, एक्सरसाइज अपने लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आप में हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेशन बढ़ाता है, एंडोर्फिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स सिक्रेशन इंप्रूव होता है, जिसके कारण आपका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से भर जाता है। वेरी गुड। छोड़ना नहीं है, अपने आप को पूरा 100% दीजिए। तो एक पॉइंट के ऊपर, वेरी गुड। छोड़ना नहीं अपने आप को, जितना आप दे सकते हैं। त्रिपाठी सर थोड़ा और नीचे। फोकस कीजिए सामने। जो लोग बैठे हैं इंकरेज कीजिए। तालियां तालियां दीजिए, मारिए। इसमें 200 लड़के तो 100 लड़कियां हैं और 10 लड़के खड़े हैं और 20 लड़कियां खड़ी है। क्या क्या है, बैठते ही नहीं है। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। जानबूझ के कर रहे हैं सब, लड़कियों को जिता रहे हैं। तो फोकस कीजिए अपने आप को। ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन आपको पता चलेगा आपके शरीर में। थाइस के मसल जो वाइब्रेट हो रहे हैं उसे भी देखिए। छोड़ना नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर सामने कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
और डीप ब्रीदिंग करते रहिए। ब्रीदिंग का जो पैटर्न है हमेशा एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए। सांस लेंगे तो पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर। गुड जॉब, वेरी गुड। हिमांशु सर को ठंडी लग रही है शायद, लेकिन कीप इट अप, ये जो एनकरेज कीजिए। आपके विजन एक्टिव हो जाएंगे इस प्रोसेस से। एक टाइप का अफर्मेशन है, ध्यान में रखो। जब भी आप ये दो एक्सरसाइज जो है, बैलेंस एक्सरसाइज जो है, जो मलासन है, वीरभद्रासन है, इसमें जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्शियस माइंड ये चीज सबकॉन्शियस में लेकर जाएगा, वहां से अनकॉन्शियस जाएगा, अनकॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस लेवल तक जाएगा। जब भी सुपर कॉन्शियस लेवल में कोई भी बात जाती है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है। तो अपने आप को जितना आप वेरी गुड। छोड़ना नहीं, वेरी गुड। जितना आप नीचे जा सकते हैं जाइए। थाइस के ऊपर ध्यान दीजिए, सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। शरीर का जो वाइब्रेशन है उसे भी दिखना है। बहुत अच्छा हो रहा है। जेंट्स के दो अपने बने भी है। अभी इन दोनों को जरा स्ट्रिक्टली देखो, वॉलंटियर्स, अभी इनका टेस्ट लेना है और सबको इंकरेज करना है। 100% दीजिए। अरे वाह, दुष्यंत पकड़ के रखो ऐसे ही। इधर को पूजा मैडम और आगे मंदा मैडम, वेरी गुड, सुपर यार, सुपर, अप्रिशिएट करेंगे सब लोग यार। आवाज ही नहीं आ रहा है। छूटेगा नहीं, पूजा मैडम, कम ऑन। अरे वाह, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। इनसे पंगा मत लेगा। वेरी गुड गंगा मैडम, थैंक यू। और दुष्यंत चलना नहीं है अभी। तालियां मारिए दोनों के लिए। छोड़ना नहीं है। हिला के रख दिया। दुष्यंत हिला के रख दो। ये सर कुछ बोलना चाहते हैं? ये बोल रहे दुष्यंत हिला के रख दो। एक मयूर भाई भी बोल रहे हैं हिला के रख दो। Oh boy. 100% देना है अपना। और नीचे जाइए थोड़ा सा, थोड़ा नीचे जाइए। फोर ऑफ करो। फॉर्म देखो अभी, अभी प्रॉपर फॉर्म देखो इनका दोनों का। हाँ अभी ये जो कंपटीशन हुआ है इसमें जो मेल है दोनों विनर है, क्योंकि दुष्यंत का फॉर्म एकदम परफेक्ट था, उनका फॉर्म में थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन वो ज्यादा समय रुके, इसलिए दोनों को हम विनर घोषित करेंगे। पुशअप करेंगे पहला। तो पोजीशन में आपको नीचे जाना है, एल्बो को फोल्ड करना है,
वो ऊपर आना, तो ज्यादा करेंगे वो विनर। नीचे जाते समय ब्रीथ इन, ऊपर आते समय ब्रीथ आउट। फॉर्म जरूरी है इसमें, हिप नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो गर्ल्स है ना, उनको नी का सपोर्ट लेकर करना है कुछ। ये देखिए, नी का सपोर्ट रखना है और नीचे जाना है, ऊपर आना है, हिप को ऊपर रखना है। मेल को नी का सपोर्ट नहीं लेना है, गर्ल्स को नी का सपोर्ट लेके करना है। इसमें चांसेस है कि कोई ज्यादा कर ले, कोई कम कर ले। व्हाट वी डू इज सब लोग एक साथ काउंट पे करेंगे, जिसका हो गया आगे। जिस सेट इन योर प्लेसेस, किसी को लग रहा है बहुत पोजीशन ले लीजिए। वॉलंटियर्स एक बार सबका पोजीशन चेक कीजिए। अभी नीज के सपोर्ट पे 2 मिनट रुकिए, स्टार्ट मत कीजिए। हम लोग काउंट करेंगे, उस हिसाब से पुशअप करेंगे। जिसका हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है, वो सब वॉलंटियर देख लेंगे। आपको मिनिमम 10 पुशअप तो करना ही है, इसके नीचे नहीं। 10 तक तो करना ही है। स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट काउंट, पोजीशन ले लीजिए। वहां पे गर्ल्स अभी थोड़ा कम कर गई है, उनको टाइम ज्यादा लग रहा है। नॉट एन इशू, लेकिन वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शोल्डर के नीचे हाथ आना चाहिए, आगे मत लीजिए। और डिस्टेंस भी हाथ का, शोल्डर इतना ही चाहिए। इसमें भी 1 2 3 स्टार्ट बोलूंगा तो स्टार्ट करना है आपको। अमित काउंट करेगा बाद में, इसके हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना है बॉडी को। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और भाई 15 16 17 18 इसमें 19 छोड़ना नहीं है। 20 21 22 23 अरे नीरव भाई इज गोइंग ऑन, कम ऑन चीयर गाइस। 24 25 अरे विमेन तो सारी कर रहे हैं आज, क्या कर रहे हैं मैन, सब करिए। 27 Come on women, come on। 29 30 Come on, counting सब लोग करो। 31 32 count guys। 33 34 34 okay, men is I guess all done। Good, women are going on। Come on 36 women correct the postures। 37 बात में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, correct the postures। 38 39 40 what is pending 40 41 42 43 only women are going on। 44 45 46 47
48, 49, 50, 51, Good, last 10 push-ups for women. Last 10. 53, 54, 55, 56, 57, 58, last 3, 59, 60 और एक एक्स्ट्रा 61। ये एक एक्स्ट्रा ध्यान में रखिए, एक एक्स्ट्रा बहुत काम में आता है। अभी जिन्होंने भी पुशअप किए सारे विनर हैं। Huge round of applause for this. 60 push-ups. इनका नाम नहीं हो रहा है एक्सरसाइज आपसे, क्योंकि आपने अपने शरीर को कभी समय नहीं दिया। क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से हमेशा सुनते हैं कि शरीर में तो कुछ नहीं। आप कितना भी मटेरियल लाइफ में आगे जाओ, बड़े हो, लेकिन आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा तो उसका कुछ काम नहीं। तो अपना शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए उसके ऊपर मेहनत करनी जरूरी है। 24 घंटे अपने पास होते हैं, उसमें से हम खाली 30 मिनट अभी देते हैं, शरीर को बहुत कुछ हो जाता है। होने के बाद अपने हार विहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत समय क्या होता है, गलत हार गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी अपने जो मसल्स है वो हमें सपोर्ट नहीं करते। तो अभी जो लास्ट प्रोसेस है फ्लाइंग, इसमें हम अपने कोर मसल की जो ताकत है वो चेक करेंगे। आपका जो हार्ट लंग्स का जो स्ट्रेंथ है इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप 1 मिनट फ्लाइंग कर पाते हो तो आपको लाइफ में कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपना विजन वो होना चाहिए, मिनिमम 1 मिनट हर एक को फ्लाइंग करनी है। और जैसे जैसे इंक्रीज करते आप 5 मिनट तक लेकर जाते हो तो आपको कार्डियो के लिए दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इतना ये एक्सरसाइज काम करता है। पानी चाहिए तो ले सकते हैं। वैसे ही 1 2 3 स्टार्ट करेंगे। फ्लाइंग में आपको जो सबसे ज्यादा समय तक उस पोजीशन में रहेगा वो विनर, उसके बाद का रनर। फॉर्म देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी शोल्डर इतना डिस्टेंस रखना है, पैर में भी शोल्डर इतना डिस्टेंस। सामने देखना है, आपका बैक है वो सीधा होना चाहिए, हिप ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहना है इसमें फ्लाइंग में। और ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते रहिए। ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आप 24 घंटे में से 2 मिनट निकाल कर भी फ्लाइंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा ये एक्सरसाइज। आपके डाइजेशन के ऊपर काम करता है, हार्ट लंग्स के ऊपर काम करता है, कोर मसल के ऊपर काम करता है, आपके जो हाथ के जो जॉइंट्स है उसके ऊपर काम करता है। स्पाइन का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव करता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव करता है, डाइजेशन सिस्टम एक्टिव करता है, कार्डियक सिस्टम एक्टिव करता है। तो ये पूरा पैकेज है ये एक्सरसाइज। मतलब अभी करते समय आपको पता चलेगा कि आपका जो आप कितने समय तक इसके कर पाओगे। तो चालू करें। पोजीशन लीजिए, अपने पोजीशन लीजिए, अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा एब्डोमेन होना चाहिए। सांस लेंगे पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर। फिर स्टार्ट करें। 1 Ready? 2 Ready? 3 स्टार्ट। Ready? Set. 3, 2, 1, go. और खुद को जरा ऊपर उठाइए। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। अपना 100% देना है, छोड़ना नहीं है पीछे। जो जीतेगा वही सिकंदर। अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देते रहिए। अपनी कोर मसल की ताकत को ऑब्जर्व कीजिए। आपके मौलिक भाई, मेरे को लगता है कुछ नीचे ऊपर नीचे ऊपर सबसे नीचे। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये।
फुल एफर्ट डालना है, बीच में छोड़ना नहीं है। इन्होंने कितना हमको पीछे साइड डाला है, छोड़ना नहीं है। इसको नीचे थोड़ा, इसको थोड़ा नीचे लीजिए, ज्यादा ऊपर नहीं, फुल टाइट रखिए पेट को। I think first time nails झाला है यार. शाबाश यार सब लोग, छोड़ो मत, छोड़ो मत, एक मिनट हो चुका है। Guys, cheer for Jay. निकुंज भाई, निकुंज भाई, म्यूजिक के बेट के ऊपर क्लैप बजाइए, म्यूजिक के बेट के ऊपर क्लैप बजाइए। हम लोग क्या करेंगे सबके लिए? वाह संजय, शाबाश शाबाश संजय। आज न्यूज पर आगे और बहुत सारे दिन छोड़ के भी वापिस कर रहे हैं, उसके लिए भी अप्रिशिएट करो यार। हाँ, वापिस। हाँ भाई, शाबाश शाबाश। Excellent, good efforts. So, I think हम लोग ने बहुत benefits लिए हैं ये जो activities की है सारी. I think we got amazing outputs out of this. इसमें पता चला कितना पसीना निकला, कितने cracks आए, क्या करके सब लोग को अपना fitness levels idea आ गए. We are really grateful to Abhijit sir over here कि उन्होंने हम लोग को इतना time दिया. On the Saturday morning, he is here to teach all of us how to take care of ourselves. It's kind of a favor also for us. We would request Abhijit sir, आप वापस हमारे साथ ऐसे वापस आए. You make us, you definitely. इसमें हम लोग के पास okay, this is not done. Don't relax. किसी को पानी चाहिए, nauseous feel हो रहा है बोल देना. We're not done it, but we'd want him after this is done. We'd want him to come again. So cheers for Abhijit bhai also. And his team. मैं तो आपके साथ ही हूँ 2013 से। विमल भाई और उसके परिवार से मेरा जो कनेक्शन है 2013 से आज 11-12 साल हो गया। तो जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे जो कंपनी के, वो तो मुझे पहले से ही जानते हैं। जो भी हेल्थ रिलेटिव कोई भी आपको कुछ पूछना है तो कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि देश का विकास करना है तो पहला अपना खुद का विकास करना जरूरी है, उसके लिए हेल्थ जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कुछ मुद्रा है, जो मुद्रा भी आपके हेल्थ के लिए काम करता है।
जो आप कहीं भी कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, ट्रैवलिंग में कर सकते हो, या घर में भी जब भी समय मिले। अपने जो हाथ है, सबको पता है, सबको पता है कि अपना जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर ये 5 तत्व शरीर में खराब हो जाते हैं तो शरीर में बीमारियां एंटर होती है। ये जो फिंगर है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, देखिए। उसके बाद का ये जो फिंगर है, लास्ट फिंगर, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, थंब। उसके बाजू का वायु तत्व को, और ये जो है आकाश तत्व को। अगर इस 5 फिंगर को लेकर हम कुछ मुद्रा एक करते हैं तो आपका शरीर में चमत्कारिक बदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 5 तत्व आपके शरीर के जो 10 सिस्टम है, उस 10 सिस्टम के ऊपर काम करता है। हम देखेंगे इसमें से एक जो है वो ज्ञान मुद्रा के बारे में आपने देखे रहेंगे कि कई योगी है, सिद्ध है, वो इस तरह बैठ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा में क्या है, ये जो थंब है, यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके आज्ञा चक्र को एनर्जी सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले समझो। जिस तरह हम घर में अपने हर एक के घर में एसी रहेगा, पंखा रहेगा, लाइट रहेगी, तो लाइट ऐसे ही नहीं जलती है, ऐसे ही पंखा शुरू नहीं होता है, बटन दबना पड़ता है। और खाली बटन दबने से पंखा चालू नहीं होगा, बटन में भी बिल्डिंग के नीचे से या जो भी बंगलो है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उधर भी कहीं और से आएगी। तो अपना शरीर ऐसे ही नहीं चल रहा है। अपना शरीर जो है, जिसे हम देख सकते हैं, वो अन्नमय कोश है। तो अन्नमय कोश को चलाने के लिए प्राणमय कोश को जानना जरूरी है। प्राणमय कोश को जानने के लिए आपका जो मनोमय कोश है उसे जानना जरूरी है। मनोमय कोश को जानने के लिए ज्ञानमय कोश को जानना जरूरी है, और ज्ञानमय कोश को जानने के लिए आनंदमय कोश से जुड़ना जरूरी है। ये 5 कोश जब भी एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो शरीर कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। अपने भौतिक शरीर में कोई भी जो भी बीमारी है वो आने के पहले आपके प्राणमय कोश में एंटर होती है। आपने देखा रहेगा आभा मंडल, ओरा बोलते हैं जिसे, भगवान के फोटो के आजू बाजू में जो कलर्स दिखते हैं वो ओरा है, आभा मंडल है। जब भी आपका प्राणमय कोश डैमेज होता है तभी वो बीमारी आपके भौतिक शरीर को डैमेज करता है। डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, जो भी बीमारियां है, बड़ी बड़ी बीमारियां, वो आने के पहले आपके प्राणमय कोश में अपना जो कार्य शुरू करती है। अगर हम अपने प्राणमय कोश को अच्छा बनाते हैं तो कोई भी बीमारी आपके भौतिक शरीर को डैमेज कर ही नहीं पाती। तो प्राणमय कोश के ऊपर मुद्रा का काम चलता है। आपका जो मूलाधार चक्र है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि एलोपैथी जो साइंस है वो खाली आपके भौतिक शरीर के साथ ही चलता है, लेकिन यौगिक साइंस आपके 5 कोशों को लेकर चलता है। एलोपैथी में जो दिखता है वो मानते हैं, लेकिन उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो खाली बीमारी को रोकते हैं, लेकिन रोकते समय जो मेडिसिन दी जाती है वो शरीर को दूसरा कुछ डैमेज हो जाता है। लेकिन हम यौगिक साइंस को लेकर अपने प्राणमय कोश के ऊपर काम करते हैं तो भौतिक शरीर में बीमारी आएगी ही नहीं। तो जो मूलाधार चक्र आपका यूरिन और गुदा मार्ग का बीच का जो जगह है, जहां पर आपका मूलाधार चक्र का स्थान है, तो ये चक्र आपका जो खराब होता है तो आपका जो सेक्सुअल ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मूलाधार चक्र को स्थिर करने के लिए अपने जो सिद्ध लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ मंत्र दिए, बीज मंत्र दिए। तो लम करके एक बीज मंत्र है जो अब बैठे बैठे लम का उच्चार करते रहेंगे और उस जगह को अंदर खींचते रहेंगे तो मूलाधार चक्र स्थिर होगा। मूलाधार चक्र अस्थिर होने से आपके जीवन में अस्थिरता आ जाती है, आपके स्पाइन रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, या
जिनको बच्चा न होना, वो भी मूलाधार चक्र का बिगाड़ होने का ही कारण है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, जो यूरिन मार्ग के ऊपर 2 इंच का जगह है, वहां पर उसका स्थान है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, तो स्वादिष्टान चक्र जल तत्व से जुड़ा हुआ है। स्वादिष्टान चक्र में खराबी होने से आपका जो पैंक्रेटिस ग्लैंड है, ये देखिए ग्रंथियां और चक्र क्या काम करती है समझ लो। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक को जरूरी है आपके भौतिक शरीर को अच्छा रखने के लिए जानकारी होना। तो अगर आपका स्वादिष्टान चक्र अस्थिर होता है तो आपका जो पैंक्रेटिस ग्लैंड है वो अस्थिर हो जाता है, डायबिटीज इंटर हो जाएगा शरीर में, पैंक्रिया का जो काम है वो कम हो जाएगा। तो उसके ऊपर काम करने के लिए जो ऋषि मुनि ने जो बीज मंत्र दिया है वो है ओम। आप इंटरनेट में भी दे सकते हैं, बीज मंत्र आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का स्थान नाभि स्थान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है, ध्यान में रखिए। हम मनुष्य जन्म खाली मौज मस्ती के लिए नहीं लिया है, अपना जो संचित कर्म है, लाखों जन्म हमने, सनातन शास्त्र बोलते हैं हमने 84 लाख योनि पार करते हुए हम इस शरीर में आए हैं। तो हम खाली मौज मस्ती के लिए नहीं आए, अपने जो प्रारब्ध कर्म स्वरूप हमने लेकर आए हैं वो कम करने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है। लेकिन जैसे ही हम इस शरीर में एंटर करते हैं तो हम प्रारब्ध तो दूर, हम क्रियामान कर्म में जुड़ जाते हैं। और मणिपुर चक्र आपके प्रारब्ध से जुड़ा है, संचित से जुड़ा है। और मणिपुर चक्र को में बिगाड़ होता है तो आपका एडर्नल ग्लैंड जो है, ग्रंथि है, वो खराब हो जाती है। और एडर्नल ग्रंथि क्या करती है, ट्रेस हार्मोन क्रिएट करता है। एडर्नल ग्लैंड के ऊपर कॉर्टिजोल नाम का एक ट्रेस हार्मोन्स है। जैसे ही आपका ट्रेस शरीर जीवन में आपके प्रवेश करेगा, चाहे फैमिली प्रॉब्लम से हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो, या जो भी आप कार्य कर रहे हो उस प्रॉब्लम से हो, आपका ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीशन बढ़ेगा। तो वो क्या करता है, कॉर्टिजोल हार्मोन आपके स्टमक में छोड़ देता है, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल जाता है एडर्नल ग्लैंड को कि कुछ तो इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी सोचकर एडर्नल ग्लैंड कॉर्टिजोल का नाम का जो हार्मोन है वो आपके स्टमक में छोड़ देता है। उसके वजह से क्या होता है, लिवर को सिग्नल जाता है, लिवर में 70 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर रहती है इमरजेंसी के लिए। शरीर की रचना देखो, शरीर पूरा इमरजेंसी प्रोसेस लेकर चल रहा है। तो लिवर को सिग्नल जाता है कि कुछ तो इमरजेंसी है, एक्स्ट्रा शुगर को छोड़ना है, तो वो पेट में शुगर को छोड़ देता है। उसी समय पैंक्रिया को क्या सिग्नल जाता है, पेट में कुछ आया है, डाइजेशन करना जरूरी है। तो पैंक्रिया इंसुलिन को आपके स्टमक में छोड़ जाता है। और आप HB1 जो डायबिटीज का जो टेस्ट है 3 महीने का आप करने जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं टेस्ट करो, तो टेस्ट में आता है 400 500, HB1 8-10 रेशो आ जाता है। लेकिन वो रेशो कहाँ से आ रहा है, वो ट्रेस हार्मोन की वजह से आ रहा है, वो डायबिटीज के कारण नहीं आ रहा है, ध्यान में रखो। लेकिन डॉक्टर आपका मेडिकल रिपोर्ट देखेगा और डिक्लेयर करेगा कि आपको डायबिटीज है, आपको ये मेडिसिन लेनी है। और एक बार आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो आपका इंसुलिन सिक्रेशन जो है, पैंक्रिया का जो कार्य है वो डिपेंड हो जाता है। समझो अगर आपको सुबह रोज ब्रेकफास्ट बनाकर सामने आ रहा है, रेडीमेड खाना आ रहा है, तो आप खाना बनाने की कोशिश ही नहीं करो। वैसे ही पैंक्रिया का आदत लग जाती है, पैंक्रिया का जो रोज का जो काम है इंसुलिन को बनाना और डाइजेशन के लिए पेट में भेजना, वो बंद हो जाता है और आपका बाहर से वो कार्य शुरू हो जाता है। तो कभी भी मेडिकल रिपोर्ट में आपका डायबिटीज आपको आ जाता है तो पहले चेक करो कि ये कहीं ट्रेस के कारण तो नहीं है, गलत लाइफस्टाइल के कारण तो नहीं है। अपने आप को 15-20 दिन दे दो, अपना लाइफस्टाइल को ठीक करो, तो देखो 95% लोगों का जो डायबिटीज कॉर्टिजोल हार्मोन्स के वजह से ही होता है। मैं ये फील्ड में लगभग 25-26 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे जो क्लाइंट है, पेशेंट है, उनको मैं मना करता हूँ कभी आता है तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, ट्रेस को ऑब्जर्व करो, उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश करो, उसके बाद दे दो। क्योंकि डॉक्टर भी गलत नहीं है, वो देखते हैं 8, 10, 11 HB1C रेशो आ जाता है तो बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आंखें डैमेज हो सकती है, किडनीज डैमेज हो सकती है। तो उनके हिसाब से वो लोग बराबर है।
देखिए हमको ऑब्जर्व करना है अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को। मणिपुर चक्र के लिए रम करके बीज मंत्र है जो डाइजेशन को भी एक्टिव करता है, आपके प्रारब्ध संचित को जलाने का भी काम करता है। उसके बाद अनाहत चक्र है जो हृदय और आपका हार्ट और लंग्स है उसको मैनेज करता है। ये थाइमस ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। अनाहत में गड़बड़ हो जाती है तो थाइमस ग्रंथि खराब हो जाती है। जैसे ही आपका थाइमस ग्रंथि खराब होता है आपका प्रतिकार शक्ति लो हो जाता है। आपके शरीर में कोई भी जो सीजनल बीमारियां होती है इंटर करती है थाइमस ग्रंथि के खराबी से। तो ध्यान में रखना है कि बार बार आपको सर्दी खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो आपका थाइमस ग्रंथि के ऊपर आपको काम करना है, अनाहत चक्र को स्थिर करना है। इमोशंस बढ़ेंगे, सेंसिटिविटी बढ़ेगी लाइफ में, तो अनाहत चक्र अस्थिर है, उसके ऊपर काम करना है। तो यम बीज मंत्र है उसके लिए। बाद में विशुद्धि ग्रंथ, विशुद्धि चक्र जो है उसका जो स्थान है आपका थायराइड ग्लैंड को ये मैनेज करता है। विशुद्धि चक्र को खराबी के कारण आपका थायराइड ग्लैंड खराब हो जाता है जो शरीर का ग्रोथ का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है थायराइड ग्लैंड का। शरीर की जो ग्रोथ है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, तो भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो करता है विशुद्धि चक्र खराबी के कारण। तो उसके लिए हम करके एक बीज मंत्र है। उसके बाद आज्ञा चक्र जो दोनों एब्रोज के बीच में थर्ड आई बोलते हैं, वहां पर उसका स्थान है। आज्ञा चक्र क्या करता है? आज्ञा चक्र पिनियल ग्लैंड को ऊर्जा प्रदान करता है और पिनियल ग्लैंड आपका एंडोर्फिन का नाम का एक हैप्पी हार्मोन्स है, वो एंडोर्फिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव करता है। एंडोर्फिन नाम का हैप्पी हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ये कैसे बढ़ेगा? वॉकिंग से, साइकिलिंग से, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स से। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो आपको आपके जीवन में होनी जरूरी है। अगर आपको खेलना नहीं आता है तो एटलीस्ट 20-25 मिनट वॉक कीजिए, खुले हवा में जाइए, नेचर से जुड़िए। आप देखो, आपने भी ट्राई किया रहेगा, शाम को आप थक भाग कर घर चले जाते हो और वो टाइम पे आप चलने चले जाते हो, चलकर आते हैं तो आपको एकदम एनर्जेटिक फील होता है। क्यों होता है? एंडोर्फिन आ रहा है, सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीशन बढ़ेगा, डोपामाइन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। ये हैप्पी हार्मोन्स है। जब तक हैप्पी हार्मोन्स आपके जीवन में, शरीर में एक्टिव नहीं होंगे तब तक आप नैराश्य से जुड़े रहेंगे, हमेशा निगेटिव थॉट आते रहेंगे। तो जरूरी है। उसके बाद सहस्त्रार चक्र माथे के ऊपर जिसका स्थान है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? सारे नीचे के जितने भी ग्रंथियां हैं उनमें हार्मोनी क्रिएट करने का काम करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया तो आपके नीचे के सारे ग्रंथियां डिस्टर्ब हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे एक्टिव हो जाती है? ध्यान से, योग से। 5 मिनट ध्यान करना जरूरी है। ध्यान में रखो, कुछ नहीं, खाली ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। अगर आप घर में काम कर रहे हो तो काम करते समय अपने आप को ऑब्जर्व करो। ध्यान मतलब कहीं जाकर हिमालय में बैठ जाना ध्यान नहीं है, या गुफा में बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब 24/7 खुद के साथ रहो, खुद के शरीर को देखो। मैं शरीर नहीं हूं, इस जो प्रोसेस है उससे जुड़ो। सांसों को देखते रहो, आपकी सांसें ऊपर ही चल रही है क्या नीचे तक चल रही है वो देखो। क्योंकि जब ऊपर से सांसें चलती है तो हम बुद्धि से जुड़े हैं। जब भी सांसें गहरी चलनी चालू हो जाती है तो आपके अपने हृदय से जुड़े हैं। और जब भी सांसें नाभि तक चलती है, जिसे जापानीज लोग तांदेन ब्रीदिंग बोलते हैं, तांदेन ब्रीदिंग। छोटा बच्चा आपने देखा रहेगा, वो जब भी सांस लेता है तो पेट बाहर आता है, पेट अंदर जाता है। देखो, उनको कुछ पता नहीं है ब्रीदिंग का टेक्निक, लेकिन वो जब भी आपके घर में अगर बच्चे रहेंगे तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, वो सांस लेगा पेट बाहर आएगा, सांस ले छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। वो राइट ब्रीदिंग टेक्निक है। अपना ब्रीदिंग टेक्निक बच्चे की तरह होना चाहिए। हम पूरा ऑक्सीजन को अंदर ले ही नहीं रहे। जब तक हम उस ऊर्जा को पूरी तरह से अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा खाली ऑक्सीजन नहीं है, उसके साथ हम कॉस्मिक ऊर्जा को, यूनिवर्स का जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको अंदर ले रहे हैं। जिसके वजह से क्या हो रहा है? वो ऊर्जा अपान वायु में कन्वर्ट हो रहा है, समान वायु में कन्वर्ट हो रहा है, प्राण वायु में कन्वर्ट हो रहा है।
उदान वायु में कन्वर्ट हो रहा है और व्यान वायु में कन्वर्ट हो रहा है। और वही वायु जब भी आप अपने शरीर में 72,000 नाड़ियां है, ध्यान में रखो, उसमें से 3 नाड़ियां इंपॉर्टेंट है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियों का स्थान भी प्राणमय कोश में है, ये आपको एमआरआई या सिटी स्कैन में नहीं मिलेगा। तो जब भी ईडा पिंगला मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड ये बैलेंस होके वो ऊर्जा सुषुम्ना में चालू हो जाती है, तो आप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका जो भी भौतिक जीवन में रोल है, रोल होता रहेगा और आप स्थिरता से उस रोल को भी देखते रहोगे। और जो भी अचीवमेंट है वो भी होते रहेंगे, जो प्रमोशन हो या बिजनेस में ग्रोथ हो या परिवार में शांति और आनंद हो, ऐसे ही परमात्मा आपको देता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू होनी जरूरी है। छोटे छोटे टेक्निक्स है, एकजुट होकर काम करो। अभी अपने पास बहुत सारे आप जन है, तो हम प्रैक्टिकल नहीं देख सकते, लेकिन मैंने एक इवेंट किया था, 30-40 जन थे। तो उस इवेंट में हमें यूनिटी क्या होती है उसके ऊपर बात करना था। तो मैंने उनको हर एक को एक एक बलून दिया था और बोला था कि अपना अपना नाम उस बलून के ऊपर लिख दो, और बोला कि उसके बाजू में ही एक छोटा सा रूम था। बोला कि अभी एक काम करो, ये अपने अपने नाम का जो बलून है वो सारे जाकर उस रूम में जाकर छोड़ दो और बाहर आ जाओ। सारों ने वैसे ही किया। थोड़ी देर के बाद उनको बोला गया कि अब एक काम करो कि अंदर जाओ और शांति से ये काम करना है कि अपने अपने नाम का जो बलून है वो बाहर लेकर आना है और आपके पास खाली 5 मिनट है। तो सारे जो भी थे वो सारे अंदर चले गए, लेकिन इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे, हर एक अपना अपना ढूंढ रहा था, किसी को अपना नाम का बलून मिल ही नहीं रहा। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट के बाद वापस सबको बाहर बुलाया गया। तो पूछा गया तो क्या हुआ, बलून नहीं मिला? तो बोला नहीं, हमको हमारा बलून मिला ही नहीं। तो उनको वापस बोला गया कि अभी वापस काम करो, वापस अंदर जाओ और आपके हाथ में जो भी बलून आएगा उसके ऊपर जो भी नाम रहेगा जोर से पुकारना है और जिसका नाम है उसको देना है। और इसके लिए भी आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। तो ये भी चुपचाप जाकर आपको काम करना है। वापस अंदर चले गए। अभी सारे जो प्रतिस्पर्धी थे 3 मिनट में ही बाहर आ गए और अपने अपने नाम का जो बलून था वो लेकर बाहर आए। ये कैसे हो गया, क्यों पॉसिबल हो गया? कोई बता सकता है? आप बोलो। वो लोग ने यूनिटी दिखाई एंड जिसके नाम का बलून था उसको पास ऑन कर दिया। तालियां बजाइए। ये जरूरी है, ध्यान में रखो। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये नहीं देखना है कि मेरे से कोई दूसरा और आगे चला जाएगा, क्योंकि हम जो जिस थॉट से जुड़ते हैं यूनिवर्स 1000 गुना आपके पास वही आएगा। अगर आप निगेटिव थॉट करते रहेंगे, खुद के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप आगे नहीं जाओगे, उल्टा आप और नीचे चला जाने का आपका जो प्रोसेस है शुरू होगा। हमेशा अपने साथ सबको लेकर आगे बढ़िए। यूनिटी जरूरी है। अगर आप एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ आपका कंपनी भी ऊपर आएगा, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आकर्षण का नियम है। हम अगर बार बार निगेटिव थॉट्स मन में सोचते रहेंगे तो क्या होगा, आकाशीय रिकॉर्ड से वही आपको अट्रैक्ट होता रहेगा। क्योंकि हम सूक्ष्म जगत को देख नहीं पा रहे, लेकिन वो आकाश तत्व में मौजूद है। जैसे जितनी निगेटिव ऊर्जा है उतनी पॉजिटिव ऊर्जा है। अगर हम निगेटिव थॉट बार बार करेंगे तो निगेटिव ऊर्जा आपको अपना घर बना देगी और आपके माध्यम से अपना कार्य शुरू करेगी। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कभी वापस समय मिला तो बात करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि अपना जीवन में शांति आनंद, हम बार बार बोलते हैं कि मेरा ही जीवन ऐसा क्यों है, बार बार दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं, उसका जो रूट है अपने अंदर ही, अपने सोच में है। क्योंकि हम उस आकाशीय रिकॉर्ड से निगेटिव थॉट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक राजा था, उस राजा को सपने बड़े बड़े आते थे। उसको आदत था, जैसे ही रात को सपना बढ़ता था उसके बाद एक ज्ञानी लोगों की टीम थी, उनको बुलाता था
और बुलाने के बाद उस सपने का अर्थ पूछता था, और जो अर्थ उसको मिलता था उसके ऊपर वो कार्य करता था। ऐसे ही उसके एक रात को उसको सपना पड़ा कि उसको दिखाई दिया कि उसके मुंह के सारे दांत टूट गए, खाली एक ही आगे वाला जो बड़ा दांत था वही बच गया। वापिस इस सपने के लिए उसने अपने सारे विद्वानों को बुलाया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि इस सपने का अर्थ क्या है। सारे विद्वानों ने हार मानी। बाद में उसको जो मंत्री था, प्रधानमंत्री, बोला कि महाराज जी, अपने नजदीकी गांव में जो दूसरा राज्य है वहां पर एक बड़े ज्ञानी रहते हैं, अगर वो आपकी परमिशन है तो उनको बुलाते हैं, वो तो इसमें मास्टर है, वो जरूर इसका जो रीजन है बोल देंगे। तो उनको बुलाया गया। महाराज जी ने अपना जो सपना था बोला कि सपने में मैंने देखा कि मेरे खाली आगे का एक दांत बचा, बाकी सारे दांत टूटे हुए मैंने देखे। तो इसका रीजन क्या है, आंसर क्या है, अर्थ क्या है? तो जो ज्ञानी थे वो बोले इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सारे लोग मरने वाले हैं और खाली आप ही बचने वाले हैं। तो ये सुनकर राजा को गुस्सा आता है। वो बोलता है तू क्या बोल रहा है, मेरे परिवार के सारे लोगों को मारना चाहता है तू? और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसको उठाकर काल कोठरी में डाल दो। तो ज्ञानी थे वो बोलते कि मैंने क्या गलत किया, मैंने जो उसका अर्थ है वही बताया। तो राजा सुनता नहीं है, उसको जेल में डाला जाता है। वापस राजा अपने प्रधानमंत्री को बुलाता है, बोलता है कि कोई तो रहेगा इसका आंसर देने वाला। तो एक खेडूत था गांव में, वो प्रधानमंत्री को पता चलता है कि ये कोई खेडूत है, वो सपने के अर्थ अच्छी तरह से बताते। तो उसको बुलाया गया। वो सादा कपड़ा डाला हुआ यंग लड़का था। राजा उसे अपना सपना बोलता है। तब वो जो लड़का था वो बोलता है कि महाराज जी, ये जो सपना है उसका तो अर्थ जबरदस्त है। इसका अर्थ है कि आप बहुत ही ज्यादा जीने वाले हैं, इतने जिएंगे कि आप पूरे राज्य के ऊपर सबसे ज्यादा राज्य करने वाले हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। तो राजा आदेश देता है कि इसको हीरे जवाहरात सोना चांदी दिया जाए, इसका सत्कार किया जाए। और वो जो खेडूत था वो जाते जाते उस ज्ञानी को भी मिलने जाता है जेल में। तो ज्ञानी पूछता है कि तूने जो बोला मैंने क्या गलत बोला? मैंने भी तो वही बोला कि तेरे सब लोग मर जाएंगे, तू ही बचेगा। तो जो लड़का है वो बोलता है आपने बोला वही मैंने बोला, लेकिन मैंने बोला उसका बोलने का जो भाषा थी वो अलग थी, आपकी भाषा अलग थी। तो हम अपने परिवार में जो हम भाषा यूज करते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। एक चीज आपको किस तरह प्रेजेंट करनी है वो जरूरी है। अगर किसी को आप कुछ सिखाने जाएंगे गलत समय पर और उसका वो समय पे वो मूड ऑफ रहेगा और उसको आप उपदेश देते जाएंगे तो वो सुनने वाला नहीं है, वो आपको गाली देगा। तो अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो पहले आपके जो आपका जो लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, उसके ऊपर भी हमको काम करना है। ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत काम करती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता और एक कहानियां के माध्यम से, मेरा ये जो थोड़ा स्टाइल है, मैं कहानियों के माध्यम से आपको बोलने की कोशिश करता हूँ। और एक बहुत बड़ा व्यापारी थे, उनको मिनरल बॉटल का एक कंपनी नया ओपन करना था। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जगह देखा था जो नदी के उस पार था। एक बार वो जो बिजनेसमैन थे वो अपने गाड़ी से नदी किनारे आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उस जगह जाना है तो 10-12 घंटे का बाय रोड गाड़ी चलाकर जाना पड़ेगा। यहाँ तो नाव है, नाव से जाऊंगा तो मैं 10 मिनट में पहुंचूंगा। तो वो जाकर नाव में बैठ वाले से पूछता है कि क्या आप मुझे वो दूसरे किनारे छोड़ देंगे? तो नाव वाला बोलता है ये तो मेरा काम ही है, आ जाइए, बैठ जाइए। तो बिजनेसमैन उस नाव में बैठ जाता है नाव वाले के साथ। नाव वाले को पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? तो नाव वाला बोलता है वो खेडूत था। वो बोलता है नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो बोलता है नहीं पहचाना, मेरा अक्सर 2-3 दिन में एक बार तो अखबार में मेरा फोटो तो आता ही है, मेरे ऊपर आर्टिकल तो आता है, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, शहर में मेरे नाम का बहुत गाजा वाजा है। तो खेडूत बोलता है कि नाव वाला बोलते है अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो पूछता है कि तुझे शहर तो पता रहेगा?
तो बोलता है मैं शहर में कभी गया नहीं। तो बोलता है कि तू शहर भी देखा नहीं तो कैसा आदमी है? तो बोलता है तुझे पढ़ने लिखने तो आता है? तो नहीं, मुझे पढ़ने लिखना नहीं आता है। तो बिजनेसमैन बोलता है तो तेरे जीने का फायदा क्या है? तुझे कुछ भी पता नहीं है तो जिक्र क्या कर रहा है? तो अभी ये जो नाव वाला है वो भी सोच में पड़ जाता है, ये तो सच बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस सोच में क्या होता है, एक नदी में एक बड़ा सा पत्थर रहता है, उस पत्थर को जाकर वो नाव टक्कर देती है और नाव के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। तो अभी नाव वाले को पता चलता है कि अभी ये जो नाव है वो डूबने वाली है नदी में। नदी तो बहुत खोल थी, पानी बहुत था। तो अभी नाव वाला उस बिजनेसमैन को पूछता है कि आपको तैरना आता है? तो बोलते हैं नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो बोलते हैं कि अभी नाव डूबने वाली है, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपका ये जो ज्ञान है उसका क्या फायदा? तो वो डर जाता है, वो बोलता है कि बाबा कुछ भी, मैं कितना भी तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा, मेरी जान बचा ले। तो जो नाव वाला बोलते हैं आप डरिए मत, मैं खाली तैरना नहीं जानता, मैं बचाना भी जानता। तो वो अपने साथ उस बिजनेसमैन को भी बचा लेता। तो कभी भी किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कौन कभी क्या कर जाए, तो हम जिसे कमजोर समझते हैं, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटीज रहती है। प्रभु ने किसी को भी ऐसे ही नहीं भेजा है। जैसे ही उस क्वालिटीज को उपजाऊ जमीन मिलेगी और उस उपजाऊ जमीन में जब भी वो बीज फूटेगा तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष को फल फूल भी लगेंगी और उस फल से न जाने कितने वृक्ष की पैदाश हो सकती है। तो कभी भी अपने जीवन में किसी को भी कमजोर मत समझना, सबको अपने साथ लेकर जाइए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। अगर कुछ किसी को पूछना है तो पूछिए। ब्रीदिंग के बारे में मैंने बोला था कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए, मतलब सांस लेंगे तो पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर। ये आपका हमेशा होना चाहिए। ऑफिस में अगर आप वर्क कर रहे हो तो 2-2 घंटे में 5-5 ब्रीदिंग कीजिए। खाली आपका जो एंजाइटी है, फोबिया है, रिलीज हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाएगा। उसके बाद पानी हमेशा बैठकर पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना है, क्योंकि बैठकर पीने से पानी आहिस्ता आहिस्ता स्टमक में जाता है और डाइजेशन को हेल्प करता है। खड़े होकर पीते हैं तो तुरंत नीचे तक चला जाता है। तो पानी का मात्रा भी आपका जो भी वजन है उसका 5% होना चाहिए। समझो आपका 80 किलो वजन है तो आपको दिन भर में 4 लीटर पानी लेना ही है। अपना शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो पानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सूप चलेगा, जूस चलेगा, छाछ चलेगा या प्लेन वाटर भी चलेगा, लेकिन 5% आपका पानी का जो शरीर का जो वजन है उसके हिसाब से होना चाहिए। आपका जो आहार के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपका सुबह का जो ब्रेकफास्ट है अच्छा हेल्दी होना चाहिए, जिसमें आप ड्राई फ्रूट या कोई कार्बो, हेवी कार्बो भी ले सकते हो। दोपहर का जो आपका ऑफिस में ही होता रहेगा दोपहर का खाना, वो भी आप अपने हिसाब से हेल्दी ले लीजिए जो डाइजेशन के लिए इजी हो। लेकिन शाम का जो खाना है वो आपको सूर्यास्त के पहले ही लेना है। ये साइंस है। महावीर स्वामी ने जो बोला ऐसे ही बोला नहीं है, ध्यान में रखिए। जैसे जैसे आपका सूर्य अस्त होता है तो अपना मणिपुर चक्र वीक हो जाता है, और मणिपुर चक्र अपने डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मणिपुर चक्र काम ही नहीं करेगा तो आपका डाइजेशन कैसे होगा? लेकिन अपना क्या होता है, ऑफिस से हम लेट घर चले जाते हैं, पूरा परिवार एक साथ आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन वो बातों बातों में इतना खाना हो जाता है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, वो वैसे ही सड़ जाता है और उससे ही टॉक्सिन क्रिएट होते हैं। वही टॉक्सिन आपके जॉइंट में जाएंगे, आपके ऑर्गन्स में जाएंगे और आपका जो अन्नमय कोश है, भौतिक शरीर है, उसे डैमेज भी करेंगे। तो आहार के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नींद आपकी जो है रात को 10 से 3 बजे का जो समय है, ध्यान में रखो। रात को 10 से 2 में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो आपके शरीर का रिपेयरिंग का काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 बजे के बाद फोन लेकर बैठते हैं, न जाने कितना समय उसी में निकल देते हैं। तो जो मेलाटोनिन काम ही नहीं कर रहा है तो शरीर का रिकवरी नहीं हो रहा है। रात को 1 से 3 बजे अपना जो लीवर है
वो लिवर डिटॉक्स करने का काम करता है। शरीर में जितने भी टॉक्सिन है वो टॉक्सिन को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। तो ये रात को 10 से 3 का समय बहुत जरूरी है नींद के लिए, सोना है 5-5 मिनट जब भी ये साधना करनी है। अभी आपने देखा रहेगा जो हमने टेस्ट लिए थे 4, फ्लाइंग हो, पुशअप हो, वीरभद्रासन हो या मलासन हो, ये ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन का टेस्ट था। आपकी कैपेसिटी शरीर की, आपका जो स्ट्रेंथ है आपको पता चले रहेंगे। आप जिम में जाकर वेट उठा रहे हो लेकिन वो खाली आपके मसल सेल्स को एक्टिव कर रहे हैं, उसको स्टिफ कर रहे हैं। ध्यान में रखो, अगर जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते तो आपको नर्वस सिस्टम की ताकत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो लैक्टिक एसिड मसल ग्रुप में स्टोर हो रहा है वो वैसे ही पड़ा हुआ है और वो क्या करते हैं आपके टिश्यूज को टाइट कर देते हैं। तो अभी जो भी आपने किया वो आपके नर्वस सिस्टम की ताकत बढ़ने की प्रोसेस है। नर्वस सिस्टम की ताकत बढ़नी जरूरी है, भारी दिखावा के लिए आपका मसल जरूरी नहीं है। तो इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए ये जो 4 प्रोसेस हमने किए वो अपने डे टू डे लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट से चालू कीजिए, ऐसे ऐसे अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है और खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। ध्यान में रखो, हम क्या कर रहे हैं, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं ही गलत हूँ, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। बार बार खुद को ही हम दोष दे रहे हैं। जो आदमी खुद के ऊपर प्रेम नहीं कर पाता वो लाइफ में और किसी के ऊपर प्रेम कर ही नहीं पाए। पहले ध्यान में रखो, खुद के ऊपर प्रेम करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी चाहना शुरू करोगे। खुद के क्वालिटीज को पहचानो, उस क्वालिटीज को मोटिवेट करो, उस क्वालिटीज को और इंक्रीज करने की कोशिश करो। अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, जो भी अभी आदान प्रदान हो गए, मैं हमेशा मेरे जो भी सत्संग होते हैं, आज मुलुंड में 95वां प्रोसेस है यूनिवर्स शांति के लिए, हम सामुदायिक प्रेयर करते हैं। 40-50 साधक एक साथ आ जाते हैं और ये सब कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी सत्संग करते हैं या क्रिया योग जैसे जो भी साधनाएं सिखाते हैं फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स से दिया हुआ है, हमको ये बेचने का कोई हक नहीं है। तो ये प्रोसेस में हम 4 घंटे का प्रोसेस रहता है, लगभग 4 घंटे में आज का जो सत्संग का टॉपिक है वहां पर वो नेचर और हमारा नेचर के साथ क्या कनेक्शन है, और उसके बाद सामुदायिक मेडिटेशन से जो भी ऊर्जा क्रिएट होती है वो ऊर्जा हम यूनिवर्स शांति के लिए डोनेट करते हैं। क्योंकि अभी ये युग का संधि काल शुरू हुआ है, नवंबर से 2027 तक रहेगा संधि काल। उसके बाद 30 से 36 मेरे जो गुरुदेव है हिमालय में है, उनका उम्र किसी को पता नहीं है, तो उनका मानना है कोरोना के बारे में भी 2018 में जब भी मैं उनको मिला था तभी उन्होंने बोला था ऐसा कुछ आ रहा है, संभालो। तो मैंने ही उनको सवाल किया था कि मेडिकल साइंस इतना आगे गया है तो अभी क्या क्या कुछ बिगाड़ सकता है। तो बोला कि सबसे प्रगत देश ही ज्यादा इसका इम्पैक्ट होने वाला है। वैसे हुआ, आपने देखा अमेरिका को ही ज्यादा, अमेरिका चाइना जैसे देशों ने ज्यादा इसका उनको भुगतना पड़ा। तो वो बोल रहे हैं कि 30 से 36 में एक्चुअल आने वाला है, कोरोना ट्रेलर था। तो समझो हमको अपने ऊपर कितना ध्यान देना है, और जो अध्यात्मता से जुड़े हुए हैं वही टिकेंगे। 40% के पॉपुलेशन वर्ल्ड का इसमें मर सकता है। आध्यात्मिक लोग क्यों बचेंगे? क्योंकि उनकी पेशेंस लेवल हाई रहेगी। कोरोना में तो बहुत सारे लोग डर के मारे मर गए थे, कुछ काम नहीं आया। बहुत मेरे पेशेंट है 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, कुछ काम नहीं आए। मैंने प्रैक्टिकल उनको मरते हुए देखे। तो जरूरी है, आपका शरीर प्रभु ने दिया है, मुफ्त में दिया है, हवा मुफ्त में है, सूर्य प्रकाश मुफ्त में है, पानी मुफ्त में है, लेकिन हमको उसकी कदर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फुकट मिल रहा है। तो जो मुफ्त में है पहले उसको कदर करना जरूरी है, क्योंकि हमको रेडी होना चाहिए जो आगे का जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आप देखिए जब भी अभी वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो चालू ही है, कभी भी बारिश आ रहा है, कभी भी तूफान आ रहा है, कहीं और कुछ वार हो रहे हैं। तो ये तो शुरुआत है, टीम बना रहे हैं एक्चुअली वो यूनिवर्स शांति के लिए। बिमल आपका जो एवरेज एज है कंपनी का 26, इसके लिए मैंने बिमल भाई को बोला कि करेंगे, क्योंकि
यंग यूथ इस प्रोसेस से जुड़ना जरूरी है, ध्यान में रखिए। जब यंग और देश तभी प्रगति करता है जब यंग जनरेशन स्ट्रांग बनता है। उस जब इस अपना सोच अंदर से डेवलप होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम जुड़ जाएंगे तो अपना जो देश है सुपर पावर होने में समय नहीं लगेगा। तो वही विजन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है ये सब साधक जुड़ रहे हैं, तो हम एक साथ जब भी जुड़ते हैं तभी कुछ अच्छा हो जाता है। अलग अलग फिंगर रहेंगे तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसमें पावर आ जाती है। तो हम भी एक दूसरे को जोड़कर ही आगे बढ़ना है। थैंक यू। तो आप अभी आपका जो इवेंट है स्पोर्ट्स का, उसमें जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। ओम आनंद ओम। आई गेस थैंक यू सो मच अभिजीत सर एंड टीम। आप लोग ने बहुत हम लोग को नॉलेज आज इम्पार्ट किया। आई थिंक ये हम लोग के लाइफ में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली लाएगा। वी अगेन रिक्वेस्ट यू कि सून अगेन वी हैव सम एक्टिविटीज लाइक दिस, कि हम लोग ये चीज को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखें, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ हो गया। So we'll move towards the prize distribution for this activity. Then we'll quickly start with all the activities.